Hello, dear students. I am Azbin Siddiqui, and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. In this series, now we are reading Chapter 8 Transport and Communication. In the last class, we were studying ocean routes, जिसमें हमने नॉर्थ अटलांटिक रूट, द मेडिटेरेनियन एंड द इंडियन ओशन रूट एंड द स्वेज कैनल रूट को स्टडी किया. एंड टुडे वी विल रीड South Atlantic route, the Cape of Hope route, the North Pacific route, the South Pacific route and the Panama Canal route. So let's start with today's topic. सबसे पहले हम पढ़ेंगे the Cape of Good Hope route, जिसे हिंदी में कहते हैं आशा अंतरिप मार्ग. This route was once the subsidiary alternative to Suez Canal route. It was avoided by most shipping companies because it avoiding long and circuitous journey. For example, this route is 6,400 km longer between Liverpool and Colombo as compared to the Suez Canal route. This route gained much importance with the closure of the Suez Canal route in the 1967. Even otherwise, large tankers cannot pass through this Suez Canal and have to adopt this route. By taking larger cargoes, the cost of the longer journey can be offset and charges can be reduced. It provides link between Western Europe and West African countries, South Africa, Southeast Asia, Australia and New Zealand. The ships coming from Europe directly head towards the Cape of Good Hope. With the increase in the tempo of economic development in the recently independent African nations and the exploitation of their rich natural resources such as gold, copper, diamond, tin, chromium, manganese, cotton, oil, palm, groundnuts, coffee and fruits. The volume of traffic around the Cape of Good Hope and from ports in both East and West Africa is on the increase. आशा अंतरिप मार्ग जो है ये पहले जल मार्ग स्वेज का वैकल्पिक मार्ग था. यानी जब स्वेज नहर के मार्ग नहीं थे तो ये उसकी जगह पे यूज़ होना था. ये मार्ग जो है, ये रास्ता जो है पूरे अफ्रीका का चक्कर काटता हुआ और बहुत लंबा रास्ता था. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो लिवरपूल से लेकर के कोलंबो के बीच इस रास्ते की लंबाई स्वेज मार्ग के अगर कंपेयर किया जाए तो 6,400 किलोमीटर ज़्यादा थी. इसलिए अधिकांश जलयान इसका प्रयोग नहीं करते थे. उसके बाद फिर क्या हुआ, स्वेज नहर बंद हो जाने से इस मार्ग का महत्व बढ़ गया. वैसे भी बड़े बड़े जहाज जो है स्वेज नहर को पार नहीं कर सकते थे, अब भी इसी मार्ग से होकर के जाते हैं. यानी कि जो बहुत बड़े बड़े जहाज है वो स्वेज कैनल से नहीं होकर के बल्कि आशा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप वाले मार्ग से जाते हैं. और कुछ जहाज इसलिए भी स्वेज कैनल से नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा कर या टैक्स देना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए भी लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं. केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिप जो मार्ग है ये पश्चिमी यूरोप को पश्चिमी अफ्रीका के देशों, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड से मिलाता है. यूरोप से आने वाले अधिकतर जहाज सीधा आशा अंतरिप पहुँचते हैं. हाल में जो आज़ादी हासिल की हुए अफ्रीकी राष्ट्र में तीव्र विकास हो रहा है, उसमें क्या हो गया कि मूल्यवान खनिज जैसे सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, टीन, क्रोमियम और अब्रक जैसी चीज़ें तथा उसके साथ साथ कृषि उत्पादों जैसे कपास, ताड़, तेल, मूंगफली, कहवा और फल में वृद्धि होने से अफ्रीका का पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित जो पोर्ट्स हैं वहाँ पर आशा अंतरिप होकर आने वाले जहाज़ों की मात्रा बढ़ गई है. Our next point is the South Atlantic route. This route provides trade link between the West Europe and West African countries and ports of Brazil, Argentina and Uruguay in South America. The traffic of this route much less as compared to that on the North Atlantic route because it connects regions of sparse population and limited economic development. Only southeastern Brazil, the Plata estuary and parts of South Africa have large-scale industrial development. The trade between Rio de Janeiro and Cape Town is also not much developed because both
Africa and South America have similar products, and reduces coffee and cocoa from Brazil, and wheat, meat, wool and flax from Argentina are sent to the industrial countries of North America and Western Europe in the return for manufactured and semi-finished commodities. Ships call at Spanish and Portuguese ports en route and may stop at Madeira and the Azores of the Canary Island for the refueling. दक्षिण अटलांटिक का जो मार्ग है, ये जलमार्ग पश्चिमी यूरोप तथा पश्चिमी अफ्रीकी देशों में संबंध स्थापित करता है। दक्षिण अमेरिका के साथ ब्राज़ील, अर्जेंटीना तथा उरुग्वे के पोर्ट्स के साथ इसका संबंध स्थापित है। इस मार्ग में महत्व उत्तर अटलांटिक मार्ग की अपेक्षा कम है, क्योंकि दक्षिण अटलांटिक महासागर के दोनों पोर्ट्स पर या दोनों तटों पर स्थित अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिकी देशों में जनसंख्या जो है कम है और इनका आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। केवल दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील और प्लाटा जवाहर मुख और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ और औद्योगिक दृष्टि से विकसित हुआ। दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरो और अफ्रीका के केप टाउन के बीच पूर्व पश्चिम मार्ग में भी व्यापार अधिक नहीं होता, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में संसाधन तथा उत्पाद लगभग एक समान है। ब्राज़ील से कहवा, कोको, अर्जेंटीना से गेहूं, मांस, ऊन और उत्तर अमेरिका तथा यूरोप से औद्योगिक प्रदेशों में भेजे जाते हैं। बदले में वहां से निर्मित और अर्धनिर्मित वस्तुएं मंगाई जाती है, जिसकी वजह कर ये रास्ता चल रहा है। Next is the North Pacific route. Trade across the vast North Pacific Ocean goes by several routes which converge at Honolulu, the crossroads of the Pacific, for refueling. These servicing the direct route further north in a great circle which links Vancouver and Yokohama without calling at the Hawaiian island, reduce the traveling distance by half. The ocean terminals that serve the North Pacific route include Vancouver, Seattle, Portland, San Francisco, and Los Angeles on the American side, dealing with wheat, timber, paper and pulp, fish, dairy products and manufactured goods. Their destination across the 7,200 km wide Pacific are generally Yokohama, Kobe, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong, Manila and Singapore. The eastbound trade from East Asia to North America consists mainly the manufactured goods, example textile, electrical equipment from Japan, Hong Kong, South Korea and Taiwan, and tropical raw material from Southeast Asia, example rubber, copra, palm oil, teak and tin and tea. उत्तर प्रशांत मार्ग जो है विशाल प्रशांत महासागर में आर पार कई मार्गों का व्यापार होता है, यानी प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा ओशन है वहाँ का ये रास्ता है जहाँ से प्रशांत महासागर के आर पार कई मार्गों में व्यापार होता है। लगभग सभी जो रास्ते हैं वो होनोलुलु पर मिलते हैं। यहाँ पर जलयान की मरम्मत और ईंधन के लिए रुकते हैं, यानी होनोलुलु पे वहाँ पर एक स्टॉपेज है जहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है जहाज़ में या फ्यूल वगैरह भरना होता है तो वहाँ पर रुकते हैं। उत्तर में बृहत वृत्त और एक सीधा मार्ग वैंकूवर तथा योकोहामा को जोड़ता है, जिसमें यात्रा की दूरी लगभग आधी रह जाती है। अमेरिकी तट पर इस रास्ते के प्रमुख पतन वैंकूवर, सियाटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस हैं। इन पतनों से गेहूं, लकड़ी, कागज, लुगदी, दूध के बने सामान का व्यापार होता है। इन वस्तुओं को 7,200 किलोमीटर चौड़े प्रशांत महासागर के पार एशियाई देशों तक ले जाया जाता है। एशियाई तट पर इन वस्तुओं के गंतव्य पतन योकोहामा, कोबे, शंघाई, ग्वांगझोउ, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर है। इन पतनों के मुख्यतः औद्योगिक उत्पादों जैसे वस्त्र, विद्युत उपकरण यानी कि बिजली के सामान और दक्षिण पूर्व एशिया में उष्णकटिबंधीय वाले जो एरिया हैं वहाँ से कच्चे माल जैसे रबर, नारियल, गरी, ताड़ तेल और टीन आदि का निर्यात होता है। नेक्स्ट इज द साउथ पैसिफिक रूट। पहले हमने पढ़ा नॉर्थ, अब साउथ पैसिफिक रूट। The traffic on this route consists mainly on ships traveling via the Panama Canal between either
Western Europe or North American, and Australia, New Zealand, and the scattered Pacific island. This route is also used for reaching Hong Kong, Philippines, and Indonesia. Goods transported are mostly wheat, meat, wool, fruits, dairy products, and manufactured articles. Ships traveling on this route have to cover exceptionally long distance. For example, the distance from Panama to Wellington is 10,380 km and from Panama to Sydney 12,280 km. But the countries like Australia have no choice if they wish to trade with North America. यानी कि जो दक्षिणी प्रशांत मार्ग, इस मार्ग में चलने वाले जलयान पनामा नहर से गुजरते हैं और जो उत्तर अमेरिका और पश्चिम यूरोप का ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा बिखरे हुए प्रशांत महासागरीय द्वीपों के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। इस रास्ते में जो है जलयान हांगकांग, फिलीपीन तथा इंडोनेशिया भी जाते हैं। ये रास्ता मुख्यतः गेहूं के लिए मांस, ऊन, फल और दूध से बनी चीज़ों का औद्योगिक उत्पादनों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है। इस रास्ते पे चलने वाले जो जलयान हैं उनको अत्यधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम ले लेंगे पनामा तथा वेलिंगटन के बीच जो 10,380 किलोमीटर की दूरी है और पनामा से सिडनी के बीच 12,280 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को उत्तरी अमेरिका से व्यापार करना है तो और कोई विकल्प नहीं है। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी देशों अमेरिका के देशों से बिजनेस करना है तो उसको इस रास्ते से ही अपना बिजनेस करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज एंड लास्ट वन इज द पनामा कैनल। दिस कैनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द Isthmus of Panama, lying between the continent of North and South America. It connects the two great oceans, the Pacific in the west and the Atlantic in the east. It was constructed, owned and controlled by the United States. The construction of the canal started in 1906 and it was opened for ships on 15 August 1914. This canal is 81 km long, 91 to 305 meters wide and 12.5 to 26 meter deep. It has Colon port on the Atlantic coast and Panama port on the Pacific coast. Panama Canal pass are through rugged topography and has took system ships pass different levels through the locks. पनामा कैनल जो या पनामा नहर जो है ये नहर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा गणराज्य के पनामा जल डमरू मध्य को काट कर बनाया गया है। ये विश्व के दो बड़े महासागर प्रशांत व अटलांटिक को मिलाती है। इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सन 1906 में शुरू किया गया और 1914 में ये नहर जो है बनकर तैयार हो गई। इस नहर के अटलांटिक तट की ओर कोलन बंदरगाह है तथा प्रशांत महासागर तट पे पनामा बंदरगाह है। इसकी लंबाई 81 किलोमीटर है, चौड़ाई 91 से लेकर 305 मीटर तक तथा गहराई जो है 12.5 से लेकर 26 मीटर तक है। पनामा नहर जो है ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों को काट करके बनाया गया है और इसका जो है तल जो है समुद्र तल से 25.6 मीटर ऊंचा है। इसलिए इसमें जल द्वारा प्रणाली यानी लॉक सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसे पार करने के लिए 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस नहर में से प्रतिदिन कम से कम 48 यानी कि 48 जहाज गुजरते हैं। अब आप जानते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है या महत्व क्या है पनामा कैनल का, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ पनामा कैनल। Before the completion of this canal, ships had to undertake long and hazardous voyage around the stormy Cape Horn. It has helped in increasing the trade between the countries of the Atlantic and Pacific seacoast. It has reduced the distance by 4,000 km between New York and Auckland and the 13,000 km between New York and San Francisco. Petroleum, grains, ores and coals comprise the cargo from the Atlantic side, and ships coming from the Pacific side bring copper, nitrate, tin, fruits, salmon fish and timber.
यानी कि पनामा नहर जो है इसको बनाने से पहले जहाज़ों को केप हॉर्न के जो खतरनाक रास्ते हैं उनसे होकर गुजरना पड़ता था, और इस नहर के बन जाने के बाद वो रास्ते जो छोड़ करके लोग पनामा नहर को यूज़ करने लगे। इस नहर के बन जाने से ऑकलैंड से न्यूयॉर्क के बीच 4000 किलोमीटर की दूरी की बचत हुई। इसके द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर के तटीय देशों के बीच व्यापार में बहुत बढ़त हुई। इस नहर के निर्माण से अमेरिका के पश्चिमी तट तथा सैन फ्रांसिस्को तथा यूरोप के लिवरपूल के बीच की दूरी में 8000 किलोमीटर तक की कमी हुई है। इस नहर द्वारा कैलिफोर्निया से पेट्रोल, चिली से सोरा तथा तांबा, चीन से चाय तथा रेशम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मांस, मक्खन, पनीर तथा चमड़ा, पूर्वी अमेरिका के देशों से तैयार माल, कपड़ा, मशीनें, दवाइयाँ आदि महासागरीय देशों को भेजी जाने लगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा आशा अंतरिक्ष मार्ग यानी कि द केप ऑफ गुड होप रूट। दूसरा हमने पढ़ा द नॉर्थ पैसिफिक रूट यानी कि दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। नेक्स्ट हमने पढ़ा द साउथ पैसिफिक रूट यानी कि उत्तर प्रशांत मार्ग। नेक्स्ट हमने पढ़ा दक्षिण प्रशांत मार्ग यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक रूट पढ़ा हमने। एंड लास्ट वन इज पनामा कैनल या पनामा नहर और इम्पोर्टेंस ऑफ पनामा कैनल, पनामा नहर के महत्व को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इनलैंड वाटरवेज। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर स्टॉप करती हूँ। होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेसन। स्टूडेंट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक यू।